My lovely students, welcome to Pathological. This is the ninth session on permutations and combinations, and let us start this session. And if you have not already subscribed to the YouTube channel and you like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. ठीक है, रोज ये बात रिपीट करते हैं, पर फिर भी तुम में से कुछ लोग रेगुलरली कंटेंट देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. Anyway, you can also join the Telegram channel Methodological, or for any questions or queries regarding preparation, you can always message me at ADITYKT. My name is Kumar Tiwari, and this is our first question of the session. क्योंकि लास्ट सेशन में तुमको कहा था कि करना है. There are 8 cans of soup on a shelf. 3 of the cans of 300 ml contain KCZ tomato soup, and the other 5 cans are all different, which implies कि जो हमारी first 3 cans हैं, all 3 have equal volume, contain the same soup, so basically all 3 are equal, all 3 are same. ठीक है, so 3 are identical and then other 5 cans are all different. In how many ways can at least 7 of these cans be arranged in a row? At least 7 have to be arranged in a row. ठीक है, तो 2 केसेस बनने वाले हैं बेसिकली हमारे. One case is when 7 cans are arranged, and the second case is when 8 cans are arranged. All 8 cans are arranged. 2 केसेस बनेंगे. अब जब 7 cans अरेंज होंगी तो 7 cans हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, और जब 8 cans अरेंज होंगी तो सेलेक्टेड है, सारी 8 cans हमारी अरेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो 2 केसेस बनने वाले हैं. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? नाउ if we are arranging 7 cans, then in how many ways can we select 7 cans out of these 8 cans? Because out of these 8 cans, 3 cans are equal. 3 cans of 300 ml, these are equal, and additionally 5 cans are different. Okay, so 3 cans है हमारी टोमेटो सूप की, और फिर हमारी 5 cans are different. So one possibility is that all 3 cans of tomato soup are selected. 3 cans of tomato soup are selected. ठीक है, and additionally plus 4 the different cans are selected. So 3 tomato soup cans and 4 different cans, these could be selected. Okay, or second scenario could be that 2 tomato soup cans are selected and all 5 different cans are selected. So this will be bifurcation in our 7 cans wala case. And or always means addition. तो पहले निकालते हैं 3 टोमेटो सूप कैंस एंड 4 डिफरेंट कैंस को अरेंजमेंट के कितने वेज होंगे, सिलेक्शन के वेज कितने होंगे. सिमिलरली 2 टोमेटो सूप कैंस एंड 5 डिफरेंट कैंस, अरेंजमेंट, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट. ओके, and then finally we'll be moving on to 8 cans. So if there are 3 tomato soup cans are selected out of 3 tomato soup cans, तो उसका वे कितना होगा? Number of ways will be 1 only. So 3 out of 3 number of ways of selection will be equal to 1 only. 3C3. ठीक है, तो 3C3 is equal to 1. Basically 3C3 से all 3 cans will be selected and that will be equal to 1. And then we have to select 4 different cans out of 5 different cans. Number of ways will be 5C4 multiplied by, now we have to arrange all these 7 cans. So number of ways of arrangement will be 7 factorial, but out of these 7 cans, 3 cans are ditto, exactly same, 3 tomato soup cans, but divided by 3 factorial कर दोगे. This is the number of ways of arrangement of 7 cans when there are 3 tomato soup cans selected and 4 different cans are selected. क्या ये clear? ठीक है. Now second scenario क्या होगा हमारा? Second scenario will be when 2 tomato soup cans and 5 different cans are selected. So number of ways of arrangement, selection कैसे होगा? Not 2 tomato soup cans are to be selected out of 3 tomato soup cans. 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है हमें. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना होगा? सिलेक्शन के वेज कितने होंगे भाई? देखो, हमें 3 में से 2 सेलेक्ट करनी है, बट सिंस ऑल 3 आर आइडेंटिकल, तो अभी भी नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा हमारा? 1 ही हो जाएगा यहाँ पे भी. ठीक है, यहाँ पे 3C3 एक्चुअल में लिखना से कंफ्यूजन हो सकता है. 3C2 तो नहीं करना है अपन को, बिकॉज ऑल 3 आर आइडेंटिकल. तो 3 में से 3 सेलेक्ट करना हो तो भी एक वे होगा, 3 में से 2 सेलेक्ट करना होगा तो भी एक वे होगा, 3 में 1 सेलेक्ट करना होगा तो भी एक वे होगा, और एक भी नहीं सेलेक्ट करना होगा तो भी एक वे होगा, बिकॉज ऑल 3 आर आइडेंटिकल. ओके, नाउ फॉर 5 डिफरेंट कैंस, इनको सेलेक्ट करने का भी देयर विल बी ओनली वन वे, एग्जैक्टली वन वे, बिकॉज ऑल 5 डिफरेंट कैंस आर टू बी सेलेक्टेड, सो दैट वे इज 5C5. And then number of ways of arrangement will be 7 factorial divided by 2 factorial, because 2 tomato soup cans are identical. So this will be number of ways when there are 2 tomato soup cans and 5 different cans. Last case is when all 8 cans are arranged. तो अब सिर्फ अरेंजमेंट करना है यहाँ पे. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट विल बी 8 factorial divided by 3 factorial for all 3 identical tomato soup cans. So this will be our answer. क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो 7 factorial वो तो कॉमन ले सकते हैं स्ट्रेट अवे. 7 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ब्रैकेट में हमारा क्या रह जाएगा? दिस इज 5C4 या फिर 7 फैक्टोरियल बाई
3 फैक्टोरियल को कॉमन लेते हैं 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया. सो फर्स्ट में आ गया 5c4 विच इज इक्वल टू 5 ओनली, प्लस डिवाइड बाई 2 था और डिवाइड बाई 6 को हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल. So this becomes equal to 8 plus 3 plus 5, that is equal to 16. So 7 factorial by 3 factorial into 16. Okay, which is 7 into 6 into 5 factorial divided by 6 into 16. 6 से 6 cancel out हो गया. So this is 7 into 16, 112 into 120. So answer will be एक सेकेंड 12 into 112, that is 1200 plus 144, 1344 होगा. 13,440, that will be the answer. ये ऑप्शंस गड़बड़ दिए हुए, इग्नोर द ऑप्शंस. ओके, सो आंसर विल बी 13,440. अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं किया है. फर्स्ट केस में हमारा अपना होगा 1 इंटू 5c4 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल. यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट. सो यस, ऑप्शंस आर गड़बड़, तो ऑप्शंस को इग्नोर करो. आंसर विल बी 13,440 ओनली. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सॉरी फॉर गिविंग यू गड़बड़ ऑप्शंस. ठीक है, तो ऑप्शंस तुम्हारे मैच नहीं किए होंगे. द एक्चुअल आंसर विल बी 13,440. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 4 shoes are selected out of 5 different pairs of shoes. Find a number of ways such that selected shoes has question part A exactly one pair, question part B exactly 2 pairs, and question part C no complete pair. So there are 3 parts of the question. Pause the video, try to solve all the parts. 4 shoes are selected out of 5 different pairs of shoes. So 5 pairs of shoes we have and we have to select 4 shoes in total. ठीक है, 4 pairs नहीं select करने, 4 shoes select करने. अब फर्स्ट पार्ट हमारा है कि एग्जैक्टली 1 पेयर सेलेक्ट हो. सारे 5 पेयर्स में से व्हेन वी आर सेलेक्टिंग 4 शूज, तो एग्जैक्टली 1 पेयर शुड बी सेलेक्टेड, यानी कि देयर विल बी टोटल 4 शूज, बट आउट ऑफ दोस 4 शूज इन द पार्ट ए, आउट ऑफ 4 शूज देयर विल बी 1 पेयर प्लस 2 शूज फ्रॉम डिफरेंट पेयर्स. सो लेट अस अज्यूम कि हमने पेयर्स को नंबरिंग किया. पेयर नंबर 1 इज L1 R1, L1 यानी कि लेफ्ट फुट का शू, R1 यानी कि राइट फुट का शू, L2 R2, L3 R3, L4 R4 एंड L5 R5. दीज आर आवर 5 पेयर्स. पेयर नंबर 1 2 3 4 एंड 5 और उनके फिर लेफ्ट फुट और राइट फुट के शूज. देयर आर टोटल 10 शूज. नाउ इन द फर्स्ट सिनेरियो व्हेन वी हैव टू एग्जैक्टली सेलेक्ट 1 पेयर, कैसे हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं? हाउ कैन वी सेलेक्ट एग्जैक्टली 1 पेयर? तो एग्जैक्टली 1 पेयर पहले सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 5 पेयर्स, बिकॉज देयर आर टोटल 5 पेयर्स, what we can do, because you have to select 1 pair and then 2 shoes from different pairs, तो पहले we can select 1 pair. ठीक है, 1 pair out of these 5. so since there are 5 pairs we have to select 1 pair, the number of ways of selection will be 5c1 to select 1 pair out of 5. now that we have selected 1 pair, तो अब हमें एक और पेयर नहीं चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली एक पेयर ही चाहिए. डिजायरेबल इज एग्जैक्टली 1 पेयर, तो एक पेयर क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है. सो नाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट अदर 2 शूज आर फ्रॉम डिफरेंट पेयर्स एंड नॉट फ्रॉम द सेम पेयर. Is that clear? So now from these four pairs we can select any 2 pairs. ठीक है, any 2 pairs we can choose any 2 pairs. Number of ways will be 4c2. So we are choosing 2 pairs. ध्यान से बात को समझना. We will be solving this question in multiple ways so that तुम्हारा जो क्लैरिटी है वो और स्ट्रांग हो, क्योंकि हो सकता है कि तुम किसी एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व कर लो बट और भी मेथड्स देखोगे तो और मजा आएगा. तो वी आर चूजिंग एनी 2 पेयर्स. नंबर ऑफ वेज विल बी 4c2. अब ये जो 2 पेयर हमने चूज किए, लेट अस से दोस पेयर्स आर पेयर नंबर 2 एंड पेयर नंबर 4. ठीक है, दोज आर पेयर नंबर 2 एंड पेयर नंबर 4. ये हमने सेलेक्ट कर लिया. अब पेयर नंबर 2 में से कोई भी एक शू सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आउट ऑफ दीज L2 एंड R2 वी कैन सेलेक्ट एनी 1 शू. तो फ्रॉम द फर्स्ट पेयर दैट वी हैव सिलेक्टेड अपार्ट फ्रॉम पेयर नंबर 1, तो खत्म हो गया. वहां से हमने दोनों शूज को सेलेक्ट कर दिया. तो यहाँ पे देखो 5c1 से भी सेलेक्टेड द पेयर, और जो भी पेयर हमने सेलेक्ट किया है उसके दोनों शूज सेलेक्ट करने हैं. तो इंटू 2c2, जस्ट इन केस अगर कंफ्यूजन रहा हो, तो इंटू 2c2. दिस विल बी नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द फर्स्ट पेयर, द ओनली पेयर जो कि पेयर होना चाहिए. इसके बाद के बचे हुए 2 शूज के लिए वी सिलेक्टेड 2 पेयर्स.
तो 4C2 से वी सेलेक्टेड दोज टू पेयर्स. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट पेयर, लेट अस से दैट इज पेयर नंबर 2, तो वी आर सेलेक्टिंग एग्जैक्टली वन शू. हमें एक ही शू चाहिए, तो number of ways of selection will be 2C1. Similarly, from the second pair, we need exactly one shoe. So that will also be 2C. So this will be number of ways of selection of exactly one pair. क्या ये समझ पा रहे हो? हमने क्या किया? We first selected one pair, तो number of ways of selection of one pair will be 5C1. Now since we have to select both the shoes of that pair, so number of ways of selection will be 2C2. And then one pair वाला selection हमारा accomplish हो गया. बिकॉज यहाँ पे सिलेक्शन ही करना है, अरेंजमेंट वाला कोई चक्कर ही नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ वी सेलेक्ट टू शूज फ्रॉम डिफरेंट पेयर्स. तो वी सेलेक्टेड टू डिफरेंट पेयर्स आउट ऑफ 4. नंबर ऑफ वेज इज 4C2, एंड देन फ्रॉम दोज टू पेयर्स वी आर सेलेक्टिंग वन शू ईच. तो 2C1 into 2C1. So that will be our total number of ways in this case. Is that part clear? So number of ways हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? This 2C2 is equal to 1, 5C5 is equal to 5, 4C2 is equal to 6, and then into 2 into 2. So that is 30 into 4, that is 120 ways in total. So number of ways is 120. Okay, done and dusted with the question. But अभी हम और अप्रोच देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का. और कैसे सोच सकते थे, और कैसे सोचा जा सकता था? So we could also have thought this question in a manner. Let us say कि देखो फर्स्ट पेयर तो क्लियर है हमारा, और फॉर द सेम क्वेश्चन भाई फर्स्ट पेयर तो 5 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर एग्जैक्टली क्योंकि दोनों शूज को सेलेक्ट करना है तो 5 into 1 हो गया फॉर द फर्स्ट पेयर, फॉर द पेयर मल्टीप्लाइड बाय. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट टू शूज फ्रॉम डिफरेंट पेयर्स. ठीक है, सो नाउ दैट वी हैव सेलेक्टेड टू शूज, पेयर यानी कि टू शूज आर सेलेक्टेड ऑलरेडी. So if two shoes are already selected, remaining number of shoes कितने बचे? 8 shoes remaining बचे हैं. So 8 shoes are remaining, 8 remaining, and we have to select 2 shoes. 8 remaining में से हमें 2 select करने हैं. 2 selection needed. So we'll select 2 out of these 8. Number of ways will be 8C2. बट क्या ये हमारा सफिशियंट है? क्या इतना काफी है? इतना काफी नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट एग्जैक्टली वन पेयर. तो 8C2 में वो केसेस भी आएंगे जहां पे कि हमारे दोनों शूज, both the shoes will be selected from the same pair. So we'll have to remove those cases. वो cases कौन से होंगे? Either both the shoes selected are from second pair only. ठीक है, दोनों शूज हमारे सेकंड पेयर से सेलेक्ट हो गए, और both the shoes selected are from the third pair, और from the fourth pair, और from the fifth pair. तो बेसिकली जो बचे हुए हमारे 4 पेयर्स हैं उन्हीं के एक एक केस बन जाएंगे हमारे, जिनमें कि both the shoes are selected from the same pair. So we'll be subtracting 4 from here. बेसिकली वी आर सब्ट्रैक्टिंग 4C1, जबकि हमारा एग्जैक्टली एक पूरा का पूरा पेयर सेलेक्ट हो गया. तो 8C2 minus 4, दिस विल बी आवर आंसर. तो इसलिए 5 into 8C2 is 28 minus 4, 24. तो 5 into 24, दैट इज इक्वल टू 120. क्या ये मेथड समझ में आता है? बात वही है, बस देखने का नजरिया हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गया. इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? ओके, इज दैट पार्ट क्लियर? अब इसी चीज को थोड़ा सा और अलग तरह से देखते हैं. ठीक है, बस हम बात कर रहे हैं अभी भी यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज वन पेयर वाला पार्ट तो क्लियर है. इस पार्ट की बात कर रहे हैं, टू शूज फ्रॉम द डिफरेंट पेयर्स. अब और कैसे सोचा जा सकता है इसी बात को, कि टू शूज फ्रॉम द डिफरेंट पेयर्स को और कैसे सोच सकते हैं हम? तो देखो, हमें पता है कि 8 शूज आर रिमेनिंग आफ्टर सिलेक्शन ऑफ वन पेयर. जैसे हमने वन पेयर को सिलेक्ट किया, वही पार्ट एक ही बात कर रहे हैं. वंस द वन पेयर इज सेलेक्टेड इन 5C1 वेज, नाउ वी हैव 8 शूज रिमेनिंग. ठीक है, सो वी कैन सेलेक्ट वन शू आउट ऑफ दीज 8 शूज इन 8C1 वेज. वन शू हैज बीन सेलेक्टेड. अब वो जो वन शू हमने सेलेक्ट किया है, अगेन लिख देते हैं L1 R1 L2 R2. लेट अस से L1 R1 पहले ही सेलेक्ट हो चुका है, सो L2 R2 L3 R3 L4 R4 L5 R5. ठीक है, अब 8 शूज में से एक शू हमने और सेलेक्ट कर लिया. लेट अस से दैट शू इज शू नंबर R3. तो जैसे ही हमने R3 सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें अब एग्जैक्टली एक ही पेयर सेलेक्ट करना था, वो पहले ही सेलेक्ट हो चुका है. सो नाउ वी कैन नॉट सेलेक्ट L3. R3 पहले ही सेलेक्ट हो गया, L3 को सेलेक्ट कर नहीं सकते. तो नाउ द शूज रिमेनिंग आर 6. Now the last shoe, fourth shoe that we have to select must be out of the remaining 6 shoes. L3 नहीं हो सकता, R3 पहले ही select हो चुका है, so that will be into 6C1. But is that enough? Is that enough? Let us say 6C1 से हमने select किया है L2 वाला shoe. ठीक है, तो ध्यान से इस बात को समझना, बिकॉज आगे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जहाँ पे कि ये यहाँ पे एक गलती हमसे हो सकता है. वो गलती क्या हो सकता है कि दिस इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, एक केस हमारा बना व्हेन वी फर्स्ट सेलेक्टेड R3 एंड देन सेलेक्टेड L2. या फिर ऐसा भी तो सकता था कि पहले हमने L2 सेलेक्ट किया होता और फिर R3 सेलेक्ट होता. तो यहाँ पे वो अरेंजमेंट वाला यानी ऑर्डर वाला हमारा डबल काउंटिंग हो जा रहा है, कि
इसको हम सेपरेटली काउंट कर रहे हैं, इसको सेपरेटली काउंट कर रहे हैं, व्हाइल दीज टू आर एग्जैक्टली द सेम केस, बिकॉज हमें चाहिए सिलेक्शन, हमें ऑर्डर नहीं चाहिए। तो विल बी डिवाइडिंग दिस बाय, क्योंकि 2 शूज हैं और अरेंजमेंट कितना हो सकता है, ऑर्डरिंग कितने तरह से हो सकता है, 2 फैक्टोरियल तरीके से, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करेंगे, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे। अगर 3 शूज होते हैं डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल करते हैं, क्योंकि उनका अरेंजमेंट के वेज होते हैं 3 फैक्टोरियल, या ऑर्डरिंग के वेज होते हैं 3 फैक्टोरियल। तो द आंसर विल बी 5c1 इंटू 8c1 इंटू 6c1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। एक बार अपने एंड पे भी ट्राई करो, समझो इस बात को, ठीक है, कि यहाँ पे ऑर्डरिंग हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है। बट सिंस यहाँ पे ऑर्डरिंग वाला फैक्टर भी आ रहा है, बिकॉज डबल काउंटिंग हो रहा है, व्हेन वी आर सेलेक्टिंग द थर्ड शू एज R3, शू नंबर 3 as R3 and shoe number 4 as L2, that is a separate case counted in this calculation. And when we are selecting L2 as a shoe number 3 and R3 as a shoe number 4, that is counted separately. जबकि दोनों में बात एक ही है, ultimately we are selecting R3 and L2 only. So that is why both will be considered exactly the same. So that is why we will be dividing by 2 factorial because of such arrangements in every case. हर एक केस में ये arrangement होगा, तो that is why divide by 2 factorial करेंगे। क्या ये appreciate कर पा रहे हो? Is that part clear? Okay. और for the same thing, इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, हम ऐसे सोच सकते थे 5c1 तो हो ही गया, मल्टीप्लाइड बाई, अब ये दोनों शूज हमें सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि अब हमें पेयर नहीं बनाना है। तो पेयर कब कब नहीं बनेगा, या तो दोनों शूज हमारे लेफ्ट लेग के हों, बोथ शूज आर फ्रॉम द लेफ्ट लेग, अगर लेफ्ट लेग के दोनों शूज होंगे तो पेयर बन ही नहीं सकता, और बोथ शूज आर फ्रॉम द राइट लेग, तभी पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि वन इज फ्रॉम लेफ्ट लेग एंड वन इज फ्रॉम राइट लेग, बट तब भी पेयर नहीं बनना चाहिए। यही 3 सिनेरियो तो होंगे, ठीक है। तो इनके लिए नंबर ऑफ वेज क्या आ जाने वाले हमारे, बोथ आर लेफ्ट लेग, तो एक तो हमने पहली पेयर सेलेक्ट कर लिया है, रिमेनिंग 4 में से देयर आर 4 लेफ्ट लेग शूज, तो 4c1 सॉरी 4c2 बिकॉज बोथ हैव टू बी लेफ्ट लेग, प्लस और यानी प्लस बोथ राइट अगेन 4c2 प्लस 1 फ्रॉम द लेफ्ट 1 फ्रॉम द राइट। अब यहां पे ध्यान रखना है कि 4c1 से वी कैन सेलेक्ट 1 फ्रॉम द लेफ्ट, बट अब राइट वाला जो लेफ्ट हमने सेलेक्ट किया है उसके जो करस्पॉन्डिंग राइट वाला है वो सेलेक्ट नहीं होना है, तो इंटू 3c1 होगा, इंटू 3c1 होगा। सो सेम ही क्वेश्चन है, बट करने के हमने मल्टीपल अप्रोचेस देखे, मल्टीपल कैलकुलेशन देखा। क्या ये समझ पा रहे हो? और अपने एंड पे क्या तुम्हें सारे के सारे अप्रोच समझ में आए? ठीक है, आंसर के लिए तो एक ही अप्रोच सफिशिएंट है, बट क्या ये मल्टीपल अप्रोचेस फॉर द सेम क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? क्या डिफरेंस क्लियर हुआ? बिकॉज कभी कभी किसी क्वेश्चन में तुम कोई एक अप्रोच करोगे, वहां पे जो गलती हो सकता है उस गलती के लिए हमने एलेबोरेट किया, इतने तरीके देखे। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, कमेंट में मेंशन करना कि तुम्हें क्या ये सारे के सारे अप्रोचेस समझ में आए, और कहीं पे भी डाउट रहता है तो वो भी कमेंट में मेंशन करना कि कहाँ पे डाउट आया एग्जैक्टली। ओके, एंड प्लीज़ बी स्पेसिफिक अबाउट योर डाउट, बिकॉज कई बार तुम में से कुछ लोग क्या करते हो कि एक तो टाइम स्टैम्प भी नहीं बताया कि किस टाइम स्टैम्प पे तुमको डाउट हुआ, और फिर डाउट भी इतना जनरलाइज लिख दिया कि समझ में ही नहीं आता, तो उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए। सो ऑलवेज बी स्पेसिफिक अबाउट द टाइम स्टैम्प, फर्स्ट थिंग कि मस्ट मेंशन द टाइम स्टैम्प कि किस टाइम स्टैम्प पे तुमको डाउट आया, और सेकेंडली व्हाट इज द एग्जैक्ट डाउट। एनीवे, अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर बी, एग्जैक्टली 2 पेयर्स। ये तो आसान है बिकॉज टोटल 5 पेयर्स हैं और हमें चाहिए एग्जैक्टली 2 पेयर्स, तो ईजी मामला है। 5c2 से वी कैन सेलेक्ट एग्जैक्टली 2 पेयर्स, बिकॉज अब दोनों पेयर्स में से दोनों दोनों शूज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 5c2 इंटू, अब जाहिर सी बात है फर्स्ट पेयर में 2c2, सेकंड पेयर में 2c2, तो ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज 10 ओनली। तो नंबर वेज विल बी 10। तो बी इज द इजिएस्ट पार्ट, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर? ठीक है, नाउ पार्ट नंबर सी, नो कंप्लीट पेयर। पार्ट नंबर सी कह रहा है कोई भी पेयर कंप्लीट नहीं चाहिए हमको, ठीक है, यानी कि ऑल 4 शूज शुड बी फ्रॉम डिफरेंट पेयर्स, सारे के सारे 4 शूज हमारे डिफरेंट पेयर्स में से होने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, ऑल 4 शूज शुड बी फ्रॉम डिफरेंट पेयर्स। सो बेसिकली विल बी यूजिंग 4 पेयर्स, 4 शूज यानी कि 4 पेयर्स को यूज करेंगे और हर पेयर से एक एक शू लेंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बिकॉज वी हैव टू यूज 4 पेयर्स इन टोटल आउट ऑफ 5, तो 5c4 वे से वी कैन सेलेक्ट 4 पेयर्स। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट 1 शू आउट ऑफ ईच पेयर, तो 2c1 फॉर द फर्स्ट शू, 2c1 फॉर द सेकंड शू, 2c1 फॉर द थर्ड शू एंड 2c1 फॉर द फोर्थ शू। तो 4 पेयर से किया, फर्स्ट पेयर से वी हैव टू सेलेक्ट 1 शू, सेकंड पेयर से 1 शू, थर्ड से 1 शू और फोर्थ से 1 शू। सो दिस विल बी 5c4 व्हिच इज इक्वल टू 5 into 16, यानी कि 80 विल बी आवर आंसर। 80 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, 80 विल बी आवर आंसर। और फॉर द सेम thought process, we could have done it this way, that when we are selecting first shoe, we have total 10 shoes, 5 pairs यानी कि 10 shoes in total। तो फर्स्ट शू तो कोई भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट शू विल बी, शू नंबर 1 विल बी 10c1, 10c1 से वी सेलेक्टेड 1 शू। अब क्योंकि 1 शू सेलेक्ट कर लिया है जिस पेयर का, उस पेयर का जो सेकंड शू बच गया है उसको सेलेक्ट नहीं करना है, एक शू तो वैसे ही कम हो गया। नाउ द सेकंड शू ऑफ दैट पेयर
शुड नॉट बी सेलेक्टेड, तो यानी कि रिमेनिंग शूज जिनमें से सिलेक्शन करना है दैट विल बी 8C1. 8 शूज बचेंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करेंगे. नंबर ऑफ वेज विल बी 8C1 फॉर द सेकंड शू. नाउ सेकंड शू जिस पेयर से सेलेक्ट हुआ है उस पेयर का अब सेकंड शू सेलेक्ट नहीं करना है. ठीक है, उस पेयर का सेकंड शू सेलेक्ट नहीं करना है. तो अब जो रिमेनिंग शूज बचेंगे जैसे कि वी कैन सेलेक्ट द थर्ड शू दैट विल बी 6, तो इनटू 6C1 फॉर द थर्ड शू. बाय द सेम लॉजिक फॉर द फोर्थ शू इट विल बी 4C1. बट क्या ये कंप्लीट हो गया है? सेम एरर यहां पे होगा जो हमारा इस केस में हुआ कि अगर हमारा जो शूज का ऑर्डर है मल्टीपल केसेस हमने सेलेक्ट किए होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमने सेलेक्ट किया है L1, R2, L3, R5, सो देर माइट बी सम केस जहां पे कि R2 पहले सेलेक्ट हुआ, फिर L1 सेलेक्ट हुआ, R5 सेलेक्ट हुआ, L3 सेलेक्ट हुआ, बट बोथ दीज सिलेक्शंस आर एग्जैक्टली सेम. बात तो एक ही है. सो अरेंजमेंट ऑफ दीज फोर, ऑर्डरिंग ऑफ दीज फोर, उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि विल बी डिवाइडिंग बाई 4 फैक्टोरियल इन दिस केस, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा. सो विल बी डिवाइडिंग बाई 4 फैक्टोरियल इन दिस केस, देन विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है. और फॉर द सेम प्रोसेस, फॉर द सेम क्वेश्चन हम ऐसे भी सोच सकते थे कि लेट अस से बिकॉज वी नीड नो कंप्लीट पेयर. ठीक है, ऐसे सोच सकते थे कि वी कुड हैव सेलेक्टेड ऑल 4 राइट शूज, राइट फुट शूज, ऑल 4 राइट एंड 0 लेफ्ट, और 3 राइट फुट शूज एंड 1 लेफ्ट, और 2 राइट 2 लेफ्ट, और 1 राइट 3 लेफ्ट, और ऑल 4 लेफ्ट यानी 0 राइट एंड 4 लेफ्ट. दीज विल बी 5 सिनेरियोस, 5 केसेस जो कि बनेंगे हमारे. ठीक है, अब इफ वी आर सेलेक्टिंग ऑल 4 राइट शूज, तो राइट पेयर के हमारे कितने शूज हैं? किसी पेयर में टोटल हमारे पास राइट शूज कितने हैं? राइट फुट शूज कितने हैं? 5 हैं. तो इफ सेलेक्ट 4, तो 5C4 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5C0 बिकॉज 5 लेफ्ट वालों में से एक भी सेलेक्ट नहीं करना, और यानी एडिशन, प्लस 3 फ्रॉम द राइट, तो दैट विल बी 5C3 इनटू, अब यहाँ पे ध्यान देना कि 5 में से वी सेलेक्टेड 3 राइट, बट हमें कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं बनाना है बिकॉज यहाँ पे तो 0 था तो कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी दिक्कत नहीं थी. बट नाउ 3 राइट एंड 1 लेफ्ट. नाउ जो राइट हमने सेलेक्ट कर लिया है उनका लेफ्ट वाला फुट, हमें लेफ्ट फुट शू हमें सेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि रिमेनिंग वालों में से सेलेक्ट करेंगे. तो सिंस 3 राइट वी ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो जिनके राइट सेलेक्ट किए हैं उनका वाला लेफ्ट नहीं चाहिए, बचे हुए का लेफ्ट चाहिए. तो 5 माइनस 3, रिमेनिंग जो बचा हमारा दैट इज 2. तो फ्रॉम द रिमेनिंग 2 पेयर्स वी कैन सेलेक्ट 1 शू दैट विल बी लेफ्ट फुट शू. ठीक है, वही सेम चाहते तो यहाँ पे भी लिख देते, तो यहाँ पे 1C0 हो जाता. बट क्योंकि 0C0 आ रहा था तो फर्क नहीं पड़ता, 1C0 है 2C0 है, अल्टीमेटली तो 1 ही आ रहा है. प्लस नाउ 2 राइट एंड 2 लेफ्ट, तो 5C2 से वी कैन सेलेक्ट 2 राइट पेयर शूज, और अब बचे हुए जो 3 पेयर है उनमें से लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे, तो इनटू 3C2 प्लस 1 राइट, सो दैट विल बी 5C1, और बचे हुए 4 में से 3 सेलेक्ट करेंगे, प्लस 5C0, और बचे हुए सारे के सारे 5 में से 4 सेलेक्ट करेंगे. सो दिस विल बी अवर वैल्यू. तो 5C4 दैट इज इक्वल टू 5 ओनली, 5 इंटू 1 दैट इज 5, प्लस 5C3 इज 10 इंटू 2 20, प्लस 5C2 इज 10 और 3C3 इज 30, प्लस अगेन यहाँ पे 5 इंटू 4 20, प्लस लास्टली दिस इज 1 इंटू 5 5, सो दिस इज 80. आंसर तो सही आना चाहिए क्योंकि लॉजिक हमने पूरा सही लगाया. ठीक है, और साथ में ये भी समझना चाहिए कि टोटल हमारे केसेस क्या हैं. तो जब भी हम 5 में से 4 शूज सेलेक्ट करेंगे, 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज में से 4 शूज सेलेक्ट करेंगे, सो इधर देयर विल बी नो पेयर व्हाटसोएवर व्हिच इज पार्ट सी, और देयर विल बी एग्जैक्टली 1 पेयर व्हिच इज पार्ट ए, और देयर विल बी एग्जैक्टली 2 पेयर्स. यानी कि 3 ही केसेस पॉसिबल है. ऑल 3 केसेस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. तो जितने भी केसेस पॉसिबल हो सकते थे वो सारे के सारे केसेस हमने कैलकुलेट किए हैं. सो दैट एम्प्लाइज कि ऑल 3 केसेस इन टोटल आर एग्जॉस्टिव. इनके अलावा कोई भी केस पॉसिबल ही नहीं है. टोटल सम हमारा क्या रहा है? फर्स्ट केस में आया 120, सेकंड में आया 10, और थर्ड में आ रहा है 80. तो एक सेकंड, 120 प्लस 10 प्लस 80, दिस शुड बी इक्वल टू टोटल केसेस विच इज इक्वल टू 210. और टोटल केसेस क्या होंगे? एनी 4 शूज आउट ऑफ 10 यानी 10C4. सो 10C4 शुड बी इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू 210 ओनली. सो दैट इज हाउ वी नो कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सबका सब पूरा राइट है. क्या ये समझ पा रहे हो? क्या ये समझ पाए हो? सारे के सारे जो हमने अप्रोचेस डिस्कस किए क्या क्लियर हुए? ठीक है, सो आई बिलीव समझ में आएगा. अब अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. Next question. How many 6-digit numbers can be formed using the digits 1, 2 and 3 such that each of the 3 digits appear at least once in the number? अब 1, 2 and 3 these are the only 3 digits जिनको हमें यूज करना है, and we have to make a 6-digit number such that each of the 3 digits appear at least once. यानी कि we have to use all 3 digits, कम से कम एक बार तो यूज करना ही करना है, and we have to make 6-digit numbers. Okay.
वी हैव टू मेक 6 डिजिट नंबर्स। तो कितने 6 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं ये पता करना है। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, देखो वन केस कुड बी लेट इससे कि पहले हमने यूज़ कर लिया 1 2 3, 1 2 3, ये एक नंबर हो गया। बेसिकली इस नंबर में क्या हो रहा है, 1 इज यूज ट्वाइस, 2 इज यूज ट्वाइस, 3 इज यूज ट्वाइस, यानी कि ऑल द डिजिट्स हैव बीन यूज ट्वाइस, यानी कि बेसिकली देर आर 3 पेयर्स। इन दिस केस देर आर 3 पेयर्स, या तो ऑल 3 कैन बी पेयर्स और देयर माइट बी 2 पेयर्स, ये भी पॉसिबल हो सकता है। नहीं 2 पेयर्स होंगे तो फिर 2 डिजिट और बच जाएगा, 2 पेयर्स तो नहीं पॉसिबल होगा। बट लेट्स से कि 1 2 3 1 2 3 ऐसा केस हो गया, या फिर इसको जंबल कर लो, ठीक है 1 2 2 1 3 3 कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे मल्टीपल केसेस बन जाएंगे हमारे। एनीवे अब सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, देयर कुड बी कि 1 1 1 2 2 3, there is one pair, one is appearing thrice and one is appearing exactly once, यानी कि 1 1 1, तो 1 हमारा thrice appear कर रहा है, 2 twice appear कर रहा है और 3 exactly once appear कर रहा है। तो this could be one case, so either there can be 3 pairs or 1 pair and 1 digit is appearing thrice, ठीक है। और ये हो सकता है कि 1 1 1 1 and then 2 3, यानी कि 1 digit is appearing 4 times। और क्या और कोई केस पॉसिबल है, क्योंकि हमें टोटल बनानी है 6 डिजिट्स, ठीक है 6 बनाना है। 6 कैसे कैसे बन सकता है, 6 कुड बी 1 + 2 + 3, ठीक है। अभी तरीका बता रहा हूँ तुमको कि कभी भी कोई केस तुम्हारा मिस ना हो जाए, इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करोगे। 6 बनाना है, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 का मतलब क्या हुआ कि 1 डिजिट विल बी अपेयरिंग वंस, 1 विल बी अपेयरिंग ट्वाइस, 1 विल बी अपेयरिंग थ्राइस, जो कि हमारा केस आया है ये सेकंड वाला, ठीक है। 1 + 2 + 3 सबसे पहले नंबर में सब स्मॉलेस्ट लिया है। अब क्या कोई और केस पॉसिबल है यहाँ पे, अगर तुम 1 को फिक्स रखो तो 2 + 3 को करोगे, एक में 1 कम करोगे, एक में 1 बढ़ाओगे, तो 1 + 3 + 2 विच इज अगेन सेम सिनारियो, सेम ही केस बन रहा है हमारा, ठीक है। तो 1 + 3 + 2 को दोबारा कैलकुलेट करने का मतलब नहीं होगा, क्योंकि सही बात होगी, ठीक है। अब इस 1 को इंक्रीज करो 1 से, तो दिस नाउ विल बी 2, तो 2 + 2 + 2 ये केस बन सकता है, ठीक है। ये केस बन सकता है। क्या कोई और केस पॉसिबल है कि जैसे ही तुमने एक को शिफ्ट किया, तो अगेन फॉर एग्जांपल 2 को 1 किया, 2 को 3 किया, तो 2 + 1 + 3 अगेन फर्स्ट वाला सिनेरियो ही आ जाएगा, यानी कि 2 के साथ भी कोई और केस पॉसिबल नहीं है। तो अब फिर से इसको इंक्रीज करो, 3 कर दिया तो 3 प्लस, अब क्या हो जाएगा, क्या और कोई केस बनेगा यहाँ पे। एक सेकंड एक सेकंड, एक गड़बड़ हो गया। जो स्टार्ट में हमें सही से कर लेना चाहिए था, इसके लिए अदरवाइज आगे आना पड़ेगा कि हम स्टार्ट में जब हमने 1 पे रखा था, तो 2 + 3 में अगर हम डिक्रीज करते तो यहाँ पे हमें 1 + 1 + 4 भी मिल जाता है। तो 1 + 1 + 4 जो कि हमने लास्ट वाला केस लिया है, 1 + 2 + 3 एंड 2 + 2 + 2, दीज आर द 3 केसेस पॉसिबल जब हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है। तो 3 केसेस हमारे बने। फर्स्ट केसेस व्हेन देयर इज 3 पेयर्स, सेकंड केसेस व्हेन देयर इज 1 पेयर एंड 1 थ्राइस, ठीक है 1 थ्राइस। एंड थर्ड केसेस व्हेन 1 इज अपेयरिंग 4 टाइम्स, 1 डिजिट, 1 यानी 1 डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है 1 डिजिट एट 4 टाइम्स एंड रिमेनिंग एग्जैक्टली वंस। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, इन द फर्स्ट केस, इन द सेकंड केस, इन द थर्ड केस। एंड देयर आर 3 पेयर्स, यानी कि सारे ही नंबर्स हमारे 3 नंबर्स है, 3 डिजिट्स हैं, और सबको वी हैव टू यूज ट्वाइस, exactly twice, यानी कि all three have to be used in pairs, you all three have to be used twice, so 3 से 3 से we will be selecting all three, ठीक है। एंड देन 6 फैक्टोरियल से वी कैन अरेंज ऑल 6 डिजिट्स, बट हमें पता है कि 3 पेयर्स हैं टोटल, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल फॉर ईच पेयर, दिस विल बी अवर नंबर इन दिस केस, which will be 3 3 is equal to 1 and 6 factorial by 8, that is 720 by 8 is equal to 90, so 1 into 90 is equal to 90, this is first case. Now second case is 1 pair and 1 appearing thrice, एक का पेयर बनाना है और एक को हमें 3 टाइम्स अपेयर कराना है, ठीक है। सो 3C1 से वी कैन सेलेक्ट दैट नंबर जिसका कि पेयर बनाएंगे, एंड देन रिमेनिंग 2 में से वी कैन सेलेक्ट दैट वन जिसको कि 3 टाइम्स अपेयर कराना है। एक का पेयर बनाना है, एक को 3 टाइम्स अपेयर कराना है, तो दोनों को हमने सेलेक्ट कर दिया। नाउ दैट देव बीन सेलेक्टेड, तो मल्टीप्लाइड बाई अरेंज करना है इनटू, हमें पता है कि 1 इज पेयर, देखो लिखने के लिए और कंफर्ट के लिए अरेंजमेंट के टाइम पे गलती ना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3 पेयर है तो दिस इज लाइक A A B B C C, तो अब अरेंजमेंट करना है इनका, अरेंजमेंट हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और सेकंड केस क्या है, 1 पेयर, तो लेट अस से A A, ना 1 थ्राइस B B B और C, तो अरेंजमेंट के बेस क्या हो जाएंगे, दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई A A 2 फैक्टोरियल B B B 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल लिखो ना लिखो बात एक ही है। तो दिस इज 3 into 2 6 into 6 फैक्टोरियल बाई 2 into 6, यानी कि दिस इज 3 into 60 विच इज इक्वल टू 180, 180 वेज हो जाएंगे सेकंड सिनेरियो के लिए। नाउ एक सेकंड, 3 into 2 6 into 6 फैक्टोरियल बाई 12, तो 6 फैक्टोरियल बाई 12 इज 6 into 60 हो रहा है, सेकंड सेकंड, ठीक है। तो दिस इज 360,
Now third scenario, when 1 is appearing 4 times, so this is like A, B, C. तो पहले तो सिलेक्शन करना है दैट डिजिट जो कि 4 टाइम्स अपेयर करेगी 3C1 से वी कैन सेलेक्ट दैट डिजिट एंड नाउ अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल. क्लियर. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू 5 दैट इज 30. तो अगेन 90 आ जाएगा. 90 प्लस 360 प्लस 90 दिस इज इक्वल टू 540 ways in total. In 540 ways we can make 6 digit numbers from using the digits 1, 2 and 3. Is that part clear? ठीक है. 540 विल बी आवर आंसर. क्या ही क्लियर है. अब एक बार फिर से ऑर्डरिंग वाली चीज देख लेते हैं कि जस्ट इनकेस अगर मैं इस क्वेश्चन में होता कि 7 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या क्या केसेस हमारे बनते. तो अगेन हम जैसे हमने 6 को किया वैसे ही 7 के लिए करते हैं कि 7 कैन बी मेड. पहले डिजिट को 1 रखो तो 1 प्लस 1 प्लस 5. पहले 2 को स्मॉलेस्ट रखा. ठीक है. अब पहला वाला फिक्स रखो यानी 1 को फिक्स रखो एंड देन 1 को इंक्रीज करो और फिर 5 को डिक्रीज करोगे. 1 को 1 से इंक्रीज करोगे 5 को 1 से डिक्रीज करोगे. दिस कैन बी 1 प्लस 2 प्लस 4. दिस इज थर्ड सेकंड केस. थर्ड केस कुल बी अगेन 2 को इंक्रीज करो और 4 को डिक्रीज करो तो 1 प्लस 3 प्लस 3. तो सारे के सारे केसेस हमारे क्योंकि 3 और 3 इक्वल आ गया. अब इसके बाद जैसे इंक्रीज करोगे तो हमारा ऊपर वाला केस ही आ जाएगा. 1 प्लस 4 प्लस 2 अगेन ऊपर वाला केस आ जाएगा. तो अब हमारे सारे 1 वाले केस तो एग्जॉस्ट हो गए. नाउ 1 को इंक्रीज करो तो 2 बन जाएगा. 2 प्लस बाकी का बचा 5. तो दिस 2 प्लस 1 नहीं करना है. अब अगली डिजिट भी 2 रख सकते हो. 2 प्लस 2 प्लस 3. और जैसे ही स्वैप करोगे तो अगेन यही बनने वाला है. यानी कि 2 से भी हमारा एक ही केस बनने वाला है. ठीक है. 2 से भी एक ही केस बनने वाला है. अब यहाँ पे 3 लाओगे तो फिर अगेन यही सेम केस बनेगा. क्या और कोई केस पॉसिबल नहीं पॉसिबल है. सो ऑल टोटल 4 केसेस ही बनेंगे हमारे. 1 1 5 यानी कि 1 डिजिट अपेयरिंग 5 टाइम्स एंड अदर 2 एग्जैक्टली वंस. सेकंड केस 1 डिजिट अपेयरिंग 4 टाइम्स 1 डिजिट अपेयरिंग 2 टाइम्स. थर्ड केस 2 डिजिट्स विल बी अपेयरिंग थ्राइस. और लास्ट वाला केस है हमारा 2 डिजिट्स विल बी अपेयरिंग इन अ पेयर एंड 1 विल बी अपेयरिंग थ्राइस. तो ये हमारे 4 सिनेरियोस बनेंगे इन दिस केस और फिर उनको अल्टीमेटली कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये ऑर्डरिंग अपना ध्यान से रखोगे तो तुम्हें कहीं पर भी गलती नहीं होगा, तुमसे एरर नहीं होगा और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे. ऑर्डरिंग अच्छे से कर पाओगे. क्या ही क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. In how many ways can 3 mathematics books, 4 history books, 3 chemistry books, and 2 biology books be arranged on a shelf so that all the books of the same subject are together and mathematics books are kept at the top? क्या करना है हमें यहाँ पे. We have to arrange books of mathematics, books of history, books of chemistry and books of biology in a shelf such that all the books of the same subject are together. यानी कि एक सब्जेक्ट की सारी बुक्स, all the books are kept together and mathematics books are kept at the top. So all mathematics books should be together. All history books should be together. All chemistry books should be together. All biology books should be together. But additionally, all mathematics books are kept at the top. यानी कि mathematics books तो fixed हैं, they should be at the top. तो top tier is fixed, that is mathematics books. But otherwise जो हमारा history है, chemistry है, biology है, these books का जो ordering है, books तो एक club में रहेंगी, एक group में रहेंगी. But the groups can be arranged. यानी कि history can be at the second top, second from the top, or history can be third from the top, or chemistry can be second from the top. So these 3 can be arranged, but mathematics must be at the top. ठीक है. So since there are 3 mathematics books, 4 history, 3 chemistry and 2 biology books. ठीक है. So number of ways of arrangement क्या आने वाला है अपना. देखो we can arrange these 3 in how many ways. 3 factorial ways में arrange कर सकते हैं. History, chemistry and biology can be arranged in 3 factorial ways. Multiplied by now we have to arrange mathematics books top पे तो रहेंगी but इनमें जो हमारा mathematics में 3 books हैं, those 3 books can be arranged. So it should have been mentioned that all 3 are different books. All books are different, that should have been mentioned. ठीक है. All books, all mathematics books should be distinct. All history books should be distinct. तो हमें यहाँ पे 3 mathematics books all are distinct. The number of arrangement for mathematics books will be 3 factorial. Similarly for history books there are 4 history books, so 4 factorial. Now for chemistry books there are 3 chemistry books, 3 factorial. And lastly there are 2 biology books, so 2 factorial for that. This will be our answer. 3 factorial into 3 factorial and 4 factorial into 3 factorial into 2 factorial. That is our answer. That is 6 into 6 into 24 into 6 into 2. This is 216 into 48. So answer will be 10,368. Okay. Our answer will be 10,368 in this case. Clear? Okay. Next question करते हैं.
the number of positive integers which can be formed by using any number of digits from 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without any repetition. We have to make number of positive we have to make positive integers, यानी कि जीरो नहीं बना सकते बिकॉज सारे के सारे हमारे डिजिट्स तो हैं, तो निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है वैसे भी, बट जीरो भी नहीं यहाँ पे बनाना है हमको. वी हैव टू मेक ओनली पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर्स ही फॉर्म करने हैं. एंड डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रेपिटेशन, सिंस वी कैन नॉट रिपीट द डिजिट्स. टोटल डिजिट्स हमारे पास है 6 डिजिट्स इन टोटल. तो हमारे जो नंबर्स बनेंगे दोज नंबर्स कैन बी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट या फिर 6 डिजिट. यही तो पॉसिबिलिटीज होंगी हमारे पास, बिकॉज 1 डिजिट कैन बी यूज एग्जैक्टली वंस, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते. तो 1 डिजिट के कितने नंबर्स बनने वाले हैं? 1 डिजिट नंबर्स कैन बी 1, 2, 3, 4, 5. 5 केसेस बनेंगे हमारे. या फिर प्लेस कर रहे होते हैं हम, एक डिजिट के लिए प्लेस रखते हैं, हमें पता है जीरो नहीं आएगा, तो 5 केसेस आर पॉसिबल. तो 5 केसेस फॉर 1 डिजिट नंबर्स. अब सेकंड केसेस 2 नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स. तो 2 डिजिट नंबर्स कितने बनने वाले हैं? फॉर 2 डिजिट नंबर्स फर्स्ट डिजिट तो फिक्स्ड है हमारा, जीरो नहीं आएगा. 5 ऑप्शन है फॉर फर्स्ट डिजिट, इट कुड बी 1, 2, 3, 4, 5. नाउ वन ऑफ देम इज प्लेस, लेटर से 2 को प्लेस कर दिया, तो फॉर द सेकंड डिजिट जीरो इज ऑल्सो अलाउड. तो 1, 3, 4, 5 दीज आर अलाउड एंड जीरो इज ऑल्सो अलाउड. So 5 places for the second digit as well. So 5 into 5 यानी 25 numbers will be 2D number, 2 digit numbers. Now 3 digit numbers. First 2 तो हो गया 5 and 5 only, यही रहेगा. बट इसके बाद हमें पता है जो भी वैल्यू आ जाएगा तो वो अगले वाले में नहीं आएगा, यानी कि 4. तो 5 into 5 into 4. पहले वाले प्लेस पे जीरो नहीं आएगा, तो 5 ऑप्शंस आर देयर. नाउ जीरो आ गया, कोई एक डिजिट आ गया, जीरो तो नहीं आया, कोई एक डिजिट आ गया, तो अब वो डिजिट रिड्यूस करना है, पर अगले वाले में क्योंकि जीरो अलाउड है तो एक इंक्रीज कर जाएगा. दैट इज वाई 5 से 1 डिक्रीज हुआ, 4 हुआ, बट क्योंकि जीरो भी आ गया तो 4 + 1 5, तो 5 ऑप्शन हुए. फिर यहाँ पे कोई एक फिलअप हो जाएगा, अगले वाले पे 4 ऑप्शन बचे. 5 into 5 into 4 यानी कि 100 विल बी. लॉजिक समझ में आ रहा होगा. तो अब अगले वाले में क्या होगा? इंटू 5 into 4, अगले वाले में इंटू 3 हो जाएगा. ठीक है, करके देख लेना अपने एंड पे. तो 4 डिजिट में होगा 5 into 5 into 4 into 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 300 फॉर 4 डिजिट नंबर्स. एंड देन अगले वाले में क्या होगा? फिर दिस विल बी 5 into 5 into 4 into 3 into 2, तो 5 डिजिट में हो जाएंगे हमारे. इंटू 2 यहाँ पे आया अपना, इंटू 4, फिर यहाँ पे आया इंटू 3, फिर यहाँ पे आएगा इंटू 2, दैट विल बी 600, और फिर नेक्स्ट वाले में आएगा इंटू 1, दोज विल ऑल्सो बी 600. यानी कि टोटल नंबर्स हमारे हो जाएंगे 12 + 3 15, 1630. टोटल नंबर्स विल बी 1630. ऑप्शन सी आंसर होगा. क्लियर है? ठीक है, ओके. So that will be all in this session, and I believe जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो तुम्हें समझ में आएंगे. And if there is any doubt whatsoever, make sure to comment about that doubt. And if you've liked this session, then make sure to hit the like button as well. और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया and you're liking this content, then make sure to spread the word. अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो और साथ में सब्सक्राइब द चैनल as well as press the bell icon. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.